Hi, my name is Ipsa. Today we're doing chemistry, chemical reactions, the chapter. And from this, typically we are doing एक बहुत ही irritating, I don't want to use that word. एक थोड़ा सा जिसमें thinking provoke होती है. ऐसे questions आते हैं, an element X, a gas Y is produced, this happens, that happens, and you have to identify the elements or the compounds or the reaction. Element X, element Y, compound X, gas Y, ऐसे वाली एक question category of questions होता है chemistry में in 9th and 10th. So for that there's some basic things which we need to understand. Okay, if you know those basic things, you can identify any XYZ wala question. Okay, so today we are doing the topic of just gases which are present in chapter 1. Okay, in CBSE. Only chapter 1 I am taking. Obviously there are thousands of compounds and gases, but I am taking only those which are present in chapter 1. Okay, and there will be parts to it. We are doing part 1. Identifying which gas, though you will know all of them mostly, but still quickly, how do we identify which gas is which? हमारे पास गैस का क्या मतलब हुआ? अब गैस का मतलब हुआ कि कुछ शू 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 की आवाज़ आ रही है, समथिंग इज कमिंग आउट ना. हाउ उस पर लिखा तो हुआ तो नहीं है ऑक्सीजन, उस पर लिखा हुआ तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, बस एक बबलिंग की आवाज़ आ रही है या एफर्वेसेंस की आवाज़ आ रही है. तो आपको कैसे पता चलेगा एज अ साइंटिस्ट, एज अ स्टूडेंट हु इज डूइंग एक्सपेरिमेंट कि ये कौन सी गैस है? लिखा हुआ तो नहीं है, हमारे पास इक्वेशन भी नहीं है, हमें पता भी नहीं क्या डाला है, रिएक्टेंट्स भी नहीं पता, प्रोडक्ट्स भी नहीं पता, तो हाउ विल यू नो कि ये कौन सी गैस है? दैट्स द पर्पस ऑफ दिस video. Okay, I have chosen 3 gases for this part 1. First we are doing oxygen gas. How do you identify that the gas is oxygen gas? Okay, there are multiple ways to identify oxygen gas. Okay, one of the सबसे इम्पोर्टेंट वाला सबसे कर लेते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही होते हैं बेकार से, वो सब जगह अप्लाई हो जाते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन का जार है, बॉटल है, ओके, देयर इज़ अ बॉटल ऑफ ऑक्सीजन एंड आई गेट अ मैच स्टिक हियर, हल्की सी जलती हुई मैच स्टिक ले आऊँगी. व्हाट विल हैपन? दिस मैच स्टिक विल स्टार्ट बर्निंग very, the flame will become bigger, the burning will become much bigger, it will start exploding, the burning thing part increases. So the most important identifying feature of oxygen is कि it increase, बहुत simple language में लिख रही हूँ, increases the burning. अब वो burning चाहे चारकोल की हो, चाहे कैंडल की हो, चाहे मैच स्टिक की हो, किसी भी चीज़ का बर्निंग है ना, वो सडनली उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेम ले आती है. इट्स अ सपोर्टर ऑफ combustion. Now this is more technical word, so it's a supporter of combustion. So the most important identifying feature of oxygen is that it is supporter of combustion. Okay, now come the other small thing. It is colorless. Obviously it does not have color. ये बहुत जनरल नहीं, ये ज़्यादातर में होते हैं इसलिए, बट हमें पता होना चाहिए. इट डज नो स्मेल, इट इज़ ओडरलेस, इट इज़ टेस्टलेस, इट हैज़ नो टेस्ट, इट इज़ स्लाइटली, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. वो टेस्ट नहीं है, हमें इससे पता नहीं चलेगा, बट हमें जस्ट पता होना चाहिए हाउ डू फिश ब्रीथ और हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है. सो वी जस्ट नीड टू नो अ फैक्ट, इट्स स्लाइटली soluble in water. Okay, so this is the major test. अगर आपके पास कोई गैस निकल रही है और आप एक बर्निंग मैच स्टिक या बर्निंग कैंडल ला दोगे, तो सडनली इसकी अगर ये छोटी सी फ्लेम है, it'll turn into a huge flame. The burning increases. That's the identifying feature of oxygen. I hope I'm able to make myself clear. Now
we come to the second gas, the other very common gas, which is hydrogen. Hydrogen has its own properties, जिसकी वजह से we can, अगर कोई ऐसे गैस निकल रही है और हमें पहचानना है कि कौन सा गैस है. अभी सपोज हमने उसमें मैचस्टिक डाली और वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, तो इसका मतलब कोई और गैस होगी. तो हम देखते हैं कि हम कैसे सोचें कि H2 गैस तो नहीं है. हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सपोज फेल हो जाए कि हमने बर्निंग मैचस्टिक डाली और वो बड़ी सी फ्लेम हो गई, वो फेल हो गया. अब हम क्या करेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजन गैस का है कि अगेन यू हैव द सेम कंटेनर which is filled with hydrogen gas. Now when you get a burning matchstick, it will give a popcorn जैसा sound. It will give a pop. It's also a very good, ये बुझ नहीं जाएगा. It will also start becoming brighter, but it will have a very strong pop. ऐसी साउंड आती रहेगी. ठीक है. सो दिस टेल्स अस दैट इट इज हाइड्रोजन गैस. द अननोन गैस इज हाइड्रोजन गैस. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अदर्स आर सेम, टेस्टलेस, कलरलेस, ओडरलेस. ओडर की पता नहीं, शायद स्पेलिंग गलत ना हो गई हो, बट कुछ तो होएगी. क्लेस कैसे बन गया, क्या बन गया पता नहीं. ओडरलेस एंड दिस एंड दैट. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट इज इट इज लाइटर देन वाटर. अब ये हमें कैसे पता चलेगा लाइटर देन वाटर? ये भी एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं. अब इसमें हम क्या करेंगे, एक गैस है जो एक कंटेनर में है. ओके, एंड this is the container which has the gas in it. Okay, now if I put it in a bucket of in a bucket of water, since this gas is lighter than water, it will start coming up. ये ऊपर आने लगती है, बबल्स ऊपर आने लगते हैं. Okay, or let me make a better diagram so it is understood better. If I put an inverted jar containing hydrogen, अब ये ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, उल्टा है, मगर क्या होता है, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते हैं और ऊपर जाने लगते हैं, यहाँ से निकलते हैं और ऊपर जाने लगते हैं. सो बिकॉज इट इज़ लाइटर देन वाटर एंड क्वाइट इनसॉल्युबल इन वाटर, ये गैस अगर हम पानी में डालें, हमने गैस को पानी में डाला तो उसके बबल्स निकलते एंड दे स्टार्ट राइजिंग अप, और इसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है. बॉटल के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती जाती है और ऊपर बबल्स आते जाते हैं. सो दिस इज द सेकेंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन. सो व्हाट कैन वी राइट अबाउट इट? इट इज़ लाइटर देन वाटर तो लिख दिया. इसको कहते हैं मोर साइंटिफिक वर्ड में displacement of water. Into the jar. कि जार के अंदर आप पानी भरने लग जाएगा and gas will start escaping. So this is the most important test. And this is okay test, and these are quite useless tests. Frankly, I hope no teacher kills me for using such words in public videos. But let's be free, let's be very calm and cool and talk in normal language. Normal language में बात करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है. So the most important was popcorns, and then it's lighter than air. Then we come to the third gas, which I have already discussed in one of the videos. It's carbon dioxide gas. Okay, carbon dioxide gas obviously again has many features, many tests. Okay, now one simple test is ये ऑक्सीजन की ऑपोजिट होती है.
ऑक्सीजन ने क्या किया था, एक मैच स्टिक थी वो जल रही थी, उसको और बड़ा फ्लेम बना दिया था। ये उसकी ऑपोजिट है, अगर मैच स्टिक है जल रही है उसको वो बुझा देगी। सो इफ आई हैव अ कंटेनर which has carbon dioxide in it and I get a matchstick near it or any burning material near it, what will happen is this will become flame extinguishes. वो जलनी बंद हो जाती है। सो बेसिकली इसका मोर टेक्निकल वर्ड होता है, इट्स अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्चन। वो कंबस्चन नहीं होने देती, वो बुझा देती है आग को। अगर आपको पता हो तो जितने भी काफ़ी सारे जो फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं ना उनमें बिल्डिंग्स में, दैट रेड फायर एक्सटिंग्विशर्स, दे मोस्टली यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव द फायर in the building. Okay, so one of the first important tests that can be easily done is कि गैस के पास आप मैच स्टिक लाओ, अगर वो बुझ जाए तो 99% चांस है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड। Now let's do another test, another important test. Okay, this is also important and this is really, but this one needs little setup. This needs little सामान चाहिए होता है, पर कोई बात नहीं, अगर हमें कंफर्म करना है कि ये वही है तो we'll do that. Okay. So what here with this video also we've done before, in a container I have to take lime water. Lime water का formula was calcium hydroxide aqueous. Okay, now if I am putting carbon dioxide gas in it and this is colorless, the lime water is colorless. Okay, now when I am putting colorless or light white, when I am putting carbon dioxide, अगर कोई भी हम गैस डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हमने कोई भी डाल दी तो ऐसे नहीं कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। बट द मोमेंट वी पुट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन इट, इसमें एक मेजर चेंज आ जाता है। ये इसके अंदर कुछ तो होता है, and the small white particles that start spreading everywhere. ये particles होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। These particles start floating everywhere और ये dissolve नहीं होते, ये insoluble होते हैं और ये white होते हैं। तो क्या हुआ, तीन चीज़ें प्रोड्यूस हो गई। कैल्शियम, एक चीज़ प्रोड्यूस हुई कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है वो वाइट पार्टिकल्स है, वो डिज़ोल्व भी नहीं हो रहे, वो सेटल भी नहीं हो रहे, वो बस उस पानी में ऐसे ऐसे तैर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या दिखता है हमें पार्टिकल्स ऐसे दिखते नहीं है, इतने बड़े नहीं होते। हमें क्या दिखता है, दैट द सोल्यूशन इज कॉल्ड बिकम्स milky. This is the important identifying test for carbon dioxide कि हमने लाइम वाटर लिया, हमने एक गैस डाली जो हमें पता नहीं है क्या है। अगर बाय चांस वो मिल्की हो गया सोल्यूशन, ऐसे उसके अंदर हल्का सा कुछ तैरता नज़र आ रहा है, वाइट स्मॉल पार्टिकल्स, दैट प्रूव्स, confirms that the unknown gas is carbon dioxide. Okay, so these are the three important gases that I first chose and the confirmatory tests for these gases. Hope I'm able to make myself clear. I'm doing the part 2 also immediately, and we are taking some more gases which are present in the first chapter, chemical reactions, so that we can use the, so if they say gas X makes pop sound, hydrogen, हमें पता है pop sound is related. Gas Y makes lime water milky, carbon dioxide. So the moment you know these small phrases, you can identify these gases or compounds in chutkis. All the best. I'm taking the next part B along immediately only.